আজকে তো একটা খুব মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। আজিকর হাসপাতালে এরকম ঘটনা কোনোদিন হয়নি। এখানে আছেন আজিকর হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির প্রধান ডক্টর সুদীপ্ত রায় এমএলএ, ডিরেক্টর মেডিকেল এডুকেশন ডক্টর সন্দীপ ঘোষ, প্রিন্সিপাল। আমিও এসেছি তার কারণ যে মেয়েটি সে আমার কেন্দ্রে থাকে, সোদপুরের নাটাগড়ের কাছে ওর বাড়ি। ওর বাড়িতে গিয়ে ডেড বডিটা পৌঁছেছে, এখনো ফর্মালিটিস করছে, তারপর ওকে নিয়ে যাবে। এখন আমি তো ছিলাম না, দিল্লি থেকে এলাম। আমার যা শুনে মনে হয়েছে যে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে যা যা ব্যবস্থা নেবার সব তারা নিয়েছেন। এই আমার কাছে সব কাগজগুলো আছে। সকাল থেকে এফআইআর করা থেকে, একটা এনকোয়ারি কমিটি করা থেকে যা করতে পারে হাসপাতালে কর্তৃপক্ষ তা করেছে। তারপরে তো আগে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তিনি করেছেন, পোস্টমর্টেম করেছেন এবং তার রিপোর্টটা এসছে। ফাইনাল রিপোর্ট আসেনি, প্রিলিমিনারি একটা এসছে। মুখ্যমন্ত্রী নিজে তো খবর নিচ্ছেন। আমাদের এমএলএ নির্মল ঘোষ ছিলেন ওখানকার এমএলএ, উনি এখনো মেয়েটির বাড়িতে আছেন। এক্ষুনি আমায় ফোনে জানালেন রাত্রেই সম্ভবত শেষকৃত্য করা হবে। এখন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলবেন যে তারা এই ঘটনা সম্বন্ধে কি বলছেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কিন্তু কখনোই বলেননি যে এটা কি ধরনের খুন। ওরা বলেছে যে আনপ্রেসিডেন্টেড ইনসিডেন্ট, একটা অভূতপূর্ব ঘটনা। এইটাই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাদের চিঠিতে বলেছেন। সব চিঠিগুলো আমি কালেক্ট করব। এবার আমি বলবো হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, ডিরেক্টর মেডিকেল এডুকেশন, দু একদিনের মধ্যে ধরাও পড়বে। এখন পর্যন্ত প্রথমেই আমাদের যেটা ওদের যা দাবি ছিল যে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এনকোয়ারি হবে, পোস্টমর্টম হবে, দুজন এখানকার প্রফেসর আর আরেকজন বাইরের নিয়ে। পোস্টমর্টম রিপোর্ট হয়েও গেছে, বডিও চলে গেছে। রিপোর্ট এখন আমরা ফাইনাল পাইনি। ফাইনাল রিপোর্ট পেলে, এবং ভিডিওগ্রাফি হয়েছে সবচেয়ে বড় কথা। সুতরাং এখানে আমরাও চাই না যে কিছু গোপন হোক, কিছু লুকিয়ে থাকুক। আমরাও চাই দোষী অবিলম্বে ধরা পড়ুক এবং তার শাস্তি হোক। এর মধ্যে আর কিছু নেই, কারণ ও আমার বাড়ির মেয়ের মতোই, আমার দু মেয়েও ডাক্তার। সুতরাং আমিও চাই যে ওর ঘটনা যে করে ঘটিয়েছে ধরা পড়ুক এবং তার উপযুক্ত শাস্তি হোক। তো এই যে ইনকোয়েস্ট হয়েছে, প্রাথমিক অবজারভেশন কিছু কি আপনারা বলতে পারবেন? প্রাথমিক অবজারভেশন এখনই বলতে পারবো না। না, সুইসাইড আমরা কখনোই বলিনি, কারণ এটা আনন্যাচারাল ডেথ অবশ্যই, কিন্তু সুইসাইড আমরা কেউই বলেনি। মানে এটা নন ন্যাচারাল ডেথ, এইটুকুই এখন বলতে পারি। এবার পুলিশ বাকিটা এবারে তো রিপোর্ট আজকে কালের মধ্যে হয়তো পেয়ে যাবো, তখন বলতে পারবো। मैं क्वेश्चन करूँगी। नहीं वो इशू नहीं होगा, इशू होगा। सर यहाँ पे जो एक इंसिडेंट हुआ है उसको लेकर क्या बोलेंगे कि आपकी प्राइमरी रिपोर्ट में क्या आया? प्राइमरी रिपोर्ट अभी नहीं बोल सकता है, वो फाइनल आएगा तो अभी हम बोलेंगे। मुझे पुलिस अभी भी इंक्वायरी चल रहा है उधर ऊपर में। आप लोगों ने टॉक्सिक और कुछ एफआईआर वगैरह नेचुरल यही बता सकता है, जो नेचुरल नहीं है सब नॉन नेचुरल होगा। उसके बाद जो इंक्वायरी चल रहा है रिपोर्ट आएगा तो भी दैट इज एट, मैंने अभी पूरा रिपोर्ट नहीं आने से नहीं बोल सकता। नेचुरल नहीं है यही, इतना तो वो भी नहीं बता सकते। वो तो अभी रिपोर्ट के बाद ही सब पता चलेगा। वो 2-1 दिन में आ जाएगा। आई एम डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एडुकेशन, कौस्तुभ नायक। यहाँ पर आए हैं, पूरे इंसिडेंट को आप देख रहे हैं, क्या क्या देखा गया कि जो रिपोर्ट है उसमें क्या क्या मेंशन हुआ? नहीं, मैं तो देर से आया हूँ, मैं दिल्ली से अभी आ रहा हूँ। मुझे पता चला कि ये लड़की जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के है। हमारे वहाँ के एमएलए निर्मल घोष भी आए थे। मैं पूरा कागज देखा, छानबीन किया।
डॉक्टर सुदीप्तो राय जो अस्पताल कमेटी के प्रेसिडेंट है वो थे, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन थे और आरजीकर का प्रिंसिपल तो थे, सब डॉक्टर थे। एक तो अस्पताल बंद नहीं होने दिया ये लोग, दो पूरा इंक्वायरी शुरू हुआ, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी जिसको बोलता है, कोई भी अननेचुरल डेथ में जो होता है वो किया गया है। इसके बाद हमें आशा है कि जल्दी जो अपराधी है उसको पकड़ा जाएगा। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है, बहुत ही दुखद घटना है। हमको सब सिर झुक जाता है कि एक डॉक्टर जो एमडी पढ़ रही थी उस पर ऐसी अत्याचार हुआ। तो इंक्वेस्ट रिपोर्ट अभी नहीं आया है, आने से सब बताएंगे। यहाँ अस्पताल के प्रिंसिपल है, डीएमई है, वो लोग बताएंगे। सर ये जो इंसिडेंट हुआ है दुखद है, लेकिन इसके पीछे की वजह को लेकर क्या क्या जो कारण है वो आपकी रिपोर्ट में है? देखिए मैडम, ये जो इंसिडेंट हुआ है आर्जीकर में, ये अत्यंत दुखजनक है। ये लड़की मेरा लड़की जैसी है। इसके साथ हुआ क्या वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगी, लेकिन ये बोल सकता हूँ एज ए प्रिंसिपल, एज ए हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, आई हैव टेकन ऑल नेसेसरी स्टेप्स regarding inquiry and everything is doing properly. As a principal, I want the report should come as first and the culprit should get punished. This much I can say. एक वर्क प्लेस में एक लड़की का इस तरह से मौत हो जाना या बोलते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। ये सुरक्षा पर भी सवाल उठा। ये तो हुआ गलत। मेरा लाइफ टाइम में भी पहली बार हुआ और शायद आर्जीकर में पहली बार हुआ। ऐसा बोला जा रहा है कि उसके साथ रेप जैसी कुछ इंसिडेंट। वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, पोस्टमार्टम हुआ है, उसके बाद ही पता चलेगा क्या हुआ एग्जैक्टली। डॉक्टर आप ये डॉक्टर है तो प्राइमरी ओपिनियन में आप नहीं, आई हैव नॉट सीन हर बॉडी, सो दैट्स व्हाई आई कांट से एनी कमेंट। मतलब मैं उनको देखा नहीं, जो मैं जब गए थे सुनने के बाद तो बॉडी कवर अप थे। सर आपने सुना होगा ना, लोगों ने बताया होगा ना कि उसका सिचुएशन कैसा था? मैं ये सुना नहीं, उनका फैकल्टी मुझे फोन किया, डॉक्टर तापादर ने ये फोन करके बोला कि एक सेकेंड ईयर पीजीटी का मौत हुआ और ये बोला जी सर अब जल्दी आ जाइए, इतना ही। बट आपने ये जानने की कोशिश नहीं की कि मौत के पीछे की वजह क्या हो? नहीं, डॉक्टर ये पहला सवाल आना। मैं उनको ये भी पूछा जी डेफिनेटली हुआ कैसे, तो उनको बोला उनको पता नहीं है, सेकेंड ईयर पीजीटी को ऐसे डेट देखा। आपका नाम और माई सेल्फ डॉक्टर संदीप घोष, प्रिंसिपल आर्जीकर। ये मैं क्वेश्चन जुड़े हुए हैं और यहाँ एक महिला डॉक्टर की जो सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी उसका मौत होता है संदिग्ध हालत में। देखिए हमारा मन में बहुत दुख हुआ है। हमारा दोनों बेटी वो भी डॉक्टर है, पढ़ाई करता है। हम जानते हैं जो डॉक्टरी जो पढ़ाई करता है कितना परिश्रम करने होता है। हम बहुत दुखी है। बस दादा ये तो दुख से ज्यादा हैरानी की बात है ना, ये एक वर्क प्लेस है, यहाँ पे उसकी किस तरह से मौत है तो और देखना होगा जो भविष्य में ऐसा घटना नहीं घटे। खामियां कहाँ पर कुछ बता सकते हैं? खामी तो देखिए इतना मरीज है, हम लोग का सिक्योरिटी भी बहुत है, बहुत टाइट सिक्योरिटी है, कलकत्ता पुलिस भी है, अपना भी सिक्योरिटी है, लेकिन तब भी ऐसा घटना हो रहा है, हम लोग दुखी है बहुत।